1962 में امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں اور افواہیں ہیں کہ سوویت جلد ہی ایٹم بم گرائیں گے۔ امریکی شہریوں میں ہڑبڑی مچ جاتی ہے اور اپنے پچھواڑے میں بم پناگاہیں بنانا عام بات بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر کیلوین اپنے بنکر پر بہت محنت کرتے ہیں اور اس میں کئی سالوں تک چلنے والی سامان سے بھر دیتے ہیں۔ ایک دن کیلوین اور اس کی حاملہ بیوی ہیلن اپنے گھر پر ایک پارٹی منعقد کرتے ہیں۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ٹی وی پر صدر کینیڈی کا ایک نشریہ دیکھتے ہیں جو اعلان کرتے ہیں کہ وہ سوویت یونین کے خلاف ایک خفیہ مشن کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ کوئی تفصیلات نہیں ہیں لیکن کیلوین پھر بھی گھبرا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ جنگ شروع ہونے والی ہے، اس لیے وہ تمام مہمانوں کو باہر نکال دیتا ہے اور اپنی بیوی کو بنکر میں گھسیٹ لیتا ہے۔ چند سیکنڈ بعد ایک ہوائی جہاز شہر کے اوپر سے پرواز کرتا ہے جبکہ اچانک اس میں مشینی خرابی کا پتہ چلتا ہے۔ پائلٹ کے پاس کچھ نہیں ہے جو وہ کر سکے اور وہ براہ راست کیلوین کے گھر سے ٹکرا جاتا ہے، اسے مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ بنکر میں کیلوین شور سنتا ہے اور تمام کپکپاہٹ محسوس کرتا ہے، اس لیے وہ قیاس کرتا ہے کہ جنگ شروع ہو گئی ہے اور فوراً دروازہ بند کر دیتا ہے۔ وہ ہیلن کو سمجھاتا ہے کہ وہ اسے دستی طور پر نہیں کھول سکتا، دروازہ 35 سال بعد خود بخود کھل جائے گا جو کہ ایٹمی ذرات کے فضا میں معمول پر آنے کا وقت ہے۔ جلد ہی حکام حادثے سے بچے کچھ ملبہ چیک کرنے پہنچتے ہیں اور چونکہ وہ زندگی کا کوئی ثبوت نہیں پا سکتے، وہ قیاس کرتے ہیں کہ کیلوین اور ہیلن حادثے میں مر گئے ہیں۔ دن گزرنے لگتے ہیں اور کیلوین خود کو گھر جیسا محسوس کرتا ہے لیکن ہیلن کو وہاں نیچے رہنا پسند نہیں ہے۔ ایک دن اس کا پانی پھٹ جاتا ہے اور اپنے شوہر کی مدد سے وہ ایک خوبصورت بچے کو جنم دیتی ہے۔ جلد ہی دن سالوں میں بدل جاتے ہیں اور ان کا بیٹا ایڈم ایک ذہین نوجوان بچہ بن جاتا ہے۔ کیلوین اسے وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو وہ جانتا ہے اور امید کرتا ہے کہ ایک دن ایڈم مک کی تعمیر نو کرے گا تاکہ اس کی پرانی عظمت واپس لائی جا سکے۔ تمام بنیادی اسکولی مضامین کے علاوہ کیلوین ایڈم کو باکسنگ کرنا، فرانسیسی اور لاطینی بولنا اور اسٹاک مارکیٹ کو سنبھالنا بھی سکھاتا ہے۔ ہیلن اسے گھر کے کام کاج کرنا سکھاتی ہے اور یہاں تک کہ ڈانس بھی سکھاتی ہے۔ کیلوین ایڈم کو 20 بال کارڈز کا اپنا مجموعہ بھی تحفے میں دیتا ہے اور اسے کھیلوں کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایڈم کو بہت سے لوگوں کا تصور کرنے میں کچھ مشکل پیش آتی ہے۔ دونوں والدین اسے بہت اچھے اخلاق سکھاتے ہیں لیکن اپنے بیٹے کے سامنے کبھی گالی نہیں دیتے، جو بہت سادہ اور محفوظ ماحول میں پروان چڑھ رہا ہوتا ہے۔ خاندان آسانی سے اپنی روزمرہ کی زندگی کے لیے ایک معمول تلاش کر لیتا ہے جس سے انہیں منی مارٹ میں جعلی خریداری کرنے، ایک ٹینک میں جعلی مچھلی پکڑنے، پودوں کی دیکھ بھال کرنے اور ایڈم کے لیے ایک اضافی کمرہ بنانے کی اجازت ملتی ہے۔ ان کے پاس ایک لاؤنج ایریا بھی ہے جہاں وہ پڑھ سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں اور آرام کر سکتے ہیں۔ اس دوران ان کے اوپر جو زمین ان کا گھر ہوا کرتی تھی وہ فروخت ہو جاتی ہے اور سالوں میں مختلف کاروبار بن جاتی ہے۔ پہلے یہ ایک ڈائنر ہے، پھر ایک پیزیریا اور بعد میں ایک نائٹ کلب۔ 1995 میں ایڈم 33 سال کا ہو جاتا ہے اور اسے اپنے والدین کے بنائے ہوئے تحائف ملتے ہیں۔ جب وہ موم بتیاں بجھاتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ ایک دن اسے کامل ساتھی ملے۔ ہیلن ذکر کرتی ہے کہ صرف 2 سال باقی ہیں اور کیلوین کہتا ہے کہ وقت آنے پر اس جگہ کی اسے یاد آئے گی، جس پر ہیلن غصہ نکالنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ 1997 میں 35 سال فائنلی ختم ہو جاتے ہیں اور دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ خاندان باہر نکلنے کے لیے بہت پرجوش ہے لیکن کیلوین ان سے کہتا ہے کہ اسے پہلے ایک فوری چیک کر لینی چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ محفوظ ہے۔ ریڈی ایشن سوٹ پہننے کے بعد وہ لفٹ سے باہر نکلتا ہے اور ایک متروک عمارت میں ظاہر ہوتا ہے جو کہ شرابی بھکاریوں کا گھر بن چکی ہوتی ہے۔ مل کر زمین سے نکلتے ہوئے ایک چمکتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر اتنا حیران ہوتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر کیلوین عمارت سے باہر نکلتا ہے لیکن تمام تبدیلیوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ ہر جگہ گرافٹی ہے، لوگ بندوقیں ایسے استعمال کر رہے ہیں جیسے وہ کھلونا ہوں، ایڈلٹ سٹورز ایسی مصنوعات سے بھرے ہوئے ہیں جو اسے نفرت انگیز لگتی ہیں اور عجیب و غریب نظر آنے والے لوگ ہیں جن کی بات وہ سمجھ نہیں پاتا۔ خوفزدہ ہو کر کیلوین بنکر میں واپس بھاگتا ہے اور وضاحت کرتا ہے کہ اگرچہ ہوا قابل تنفس ہے لیکن محلہ اب بھی ایک بعد از جنگل کی تباہ شدہ زمین ہے جو پاگل میوٹنٹس سے بھری ہوئی ہے۔ وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ انہیں بنکر میں ہی رہنا چاہیے اور اس کی باتوں پر ہیلن کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ وہ اس پر چلوتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ وہ بند رہنے سے کتنی بیزار ہے اور یہ کہ ایڈم کا فطرت سے رابطہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ کیلوین اپنا ارادہ تبدیل کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور بحث اس کے دل کا دورہ پڑنے کا سبب بنتی ہے۔
केल्विन के बीमार होने और सामान तकरीबन खत्म होने के साथ हेलन फैसला करती है कि एडम को कुछ सालों के लिए काफ़ी खुराक हासिल करने के लिए बाहर भेजा जाए। वो इसे कुछ नकद रकम और एक खरीदारी की फहरिस्त देती है, इसे बताती है कि हाली डे उनमें रहे और किसी गरदबाशदा लड़की पर नज़र रखे। एडम के जाने से पहले केल्विन इसे बताता है कि वो एडल्ट वीडियो स्टोर में दाखिल ना हो क्योंकि इसमें ताबकारी की नुकसान दे सकते हैं। पैकिंग खत्म करने के बाद एडम फाइनली बाहर जाता है और दरियाफ्त करता है कि मिलकर ने केल्विन के खानदान की पूजा करने, उन्हें मुकद्दस हस्तियों समझते हुए लिफ्ट के अर्द गिर्द एक छोटा सा मंदिर बना लिया है। एडम बाहर जाता है और पहली बार बहुत सी चीज़ों को देखकर बेहद खुश होता है। हैरत अंगेज आसमान, इमारतें, दरख्त और यहाँ तक कि दूसरे लोग जो इसे अजीब समझते हैं। वो हर एक छोटी छोटी चीज़ पर पुरजोश हो जाता है और इसके पास से गुजरने वाले हर शख्स को हेलो कहता है। गलती से एक सियाफाम खातून को मुखातिब करते हुए एक तौहीन आमेज लफ्ज़ इस्तेमाल करता है क्योंकि वो दूसरा जिनलत का रंग देखकर बहुत पुरजोश होता है। जब वो एडल्ट वीडियो स्टोर के पास से गुजरता है तो वो अपनी नाक ढांप लेता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने की ताकीद करता है। इसके बाद वो बस पर चढ़ जाता है और मशीन को चलते हुए महसूस करके वाकई डर जाता है। जब वो दूसरे मुसाफिरों से बात करने की कोशिश करता है तो वो पुराने अल्फाज इस्तेमाल करता है और कोई इसे समझ नहीं पाता, इसलिए वो भी इसे अजीब समझते हैं। आखिरकार एडम ग्रोसरी स्टोर पर पहुंच जाता है और फहरिस्त से तमाम अशिया उठाना शुरू कर देता है। कसाई वजाहत करता है कि अगर वो बड़ा ऑर्डर करे तो इसे इसके घर पहुंचाया जा सकता है, जिस पर एडम को एहसास होता है कि इसे बनकर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं पता। घबरा कर वो दुकान से बाहर भागता है और दिन के मुख्तलिफ बसों में सवार होकर बनकर की तलाश में गुजारता है, लेकिन नाकाम रहता है। इसके पास नकद भी खत्म हो रही होती है, इसलिए वो अपने वालिद के 20 बाल कार्ड्स बेचने के लिए एक हॉबी शॉप में दाखिल होता है। दुकान का मालिक बता सकता है कि ये कदीम और कीमती कार्ड्स हैं, लेकिन एडम को बताने के बजाय वो पूरा पैक सिर्फ $500 में खरीदने की पेशकश करता है। एडम के कबूल करने से पहले शॉप की मुआविन ईव उन्हें रोकती है और एडम को बताती है कि इसे धोखा दिया जा रहा है क्योंकि उन कार्ड्स में से हर एक की कीमत $4,000 से $6,000 के दरमियान है। ईव अपने बास को बुरा भला कहती है और फौरी तौर पर काम छोड़ देती है, जिस पर एडम इससे बहुत मुतासिर होता है और इसके दिल में इसके लिए मोहब्बत पैदा होने लगती है। दुकान से बाहर निकलने के बाद एडम ईव से कहता है कि वो इसे हाली डे उन होटल तक पहुंचाए। पहले तो ईव इनकार करती है और इससे भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जल्दी ही अपना इरादा बदल लेती है जब एडम इसे 20 बाल कार्ड्स के बदले में अदायगी का वादा करता है। सफ़र के दौरान एडम रेडियो पर तमाम पुराने गाने मुंतखब करता है, जिसे ईव बहुत अजीब समझती है। जैसे ही ईव एडम को होटल में छोड़ती है, वो बगैर कुछ कहे चली जाती है। एडम अपने कमरे में जाता है और जब वो खिड़की से देखता है तो 18वें मंजिल से नजर आने वाले मंजर को देखकर हैरान रह जाता है। फिर वो रंगीन टेलीविजन देखने का लुत्फ उठाता है। वो यकीनी भी बनाता है कि तुलू आफताब देखने के लिए बहुत जल्दी उठे। अगली सुबह ईव एडम से होटल पर मिलती है ताकि इसे कार्ड्स वापस दे क्योंकि वो इतना आसान काम करने के इतनी ज्यादा अदायगी पर खुद को मुजरिम महसूस करती है। फिर वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन एडम इसे एक पेशकश के साथ रोकता है। वो इसे अपनी मुआविन बनने के लिए अदायगी करेगा और वो बनकर के लिए तमाम चीज़ें जमा करने में इसकी मदद कर सकती है। ईव राजी हो जाती है और वो मिलकर मजीद 2 सालों तक चलने के लिए काफ़ी सामान खरीदते हैं। इस अमल में कई ट्रकों की खिदमात हासिल करते हैं। एडम इसे ये बताकर भी हैरान कर देता है कि वो एक बीवी तलाश करना चाहता है। खरीदारी खत्म करने के बाद ईव एडम को अपने घर ले जाती है और वो इसकी हम कमरा टराए से मिलता है, जो एडम से बहुत सारे सवालात पूछना शुरू कर देता है। जब वो महसूस करता है कि वो तमाम टेक्नोलॉजी को देखकर कितना हैरान है। एडम झूठ बोलता है, कहता है कि वो अलास्का से है और यहाँ कारोबारी सफ़र पर आया है। इस दौरान हेलन बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस हो जाती है और लिफ्ट पर चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है वो मिलकर और इसके दोस्तों को डरावना देखती है और फौरी तौर पर वापस चली जाती है। अगले दिन टराय फैसला करता है कि एडम को फैशन में तब्दीली की ज़रूरत है, इसलिए वो इसे बिल्कुल नया लिबास देता है जो इसे और भी खूबसूरत बना देता है। अगले कुछ दिनों में ईव और टराय एडम को बहुत से नए तजर्बात कराते हैं, जैसे जदीद मूसीकी पर डांस करना, स्केटबोर्डिंग करना और समंदर देखना। एडम इतना पुरजोश हो जाता है कि वो बेफिक्री से पानी में छलांग लगा देता है। इसे 20 बाल का मैच भी देखने को मिलता है और आखिरकार वो समझ जाता है कि इसके वालिद को ये खेल इतना पसंद क्यों है। एक दोपहर बारिश होने लगती है और एडम हैरत के आलम में इसके नीचे खड़ा हो जाता है। जब ईव इसकी चेकिंग के लिए आती है तो एडम इसे खुशी बांटने के लिए गिले लगा लेता है,
कहता है कि इसके वालिद इसे मौजिज़ा कहेंगे। शाम को ईव और टराय एडम को इसकी बीवी तलाश करने के लिए एक पुराने ज़माने के स्विंग क्लब में ले जाते हैं और इसे सिर्फ अपने आप को ही पेश करने को कहते हैं। क्लब में ख़वातीन फौरी तौर पर एडम की मीठी शख्सियत, बाएतिमाद अखलाक और खूबसूरत नज़र की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। ईव की हरीफ फौरी तौर पर इसकी तवज्जो हासिल कर लेती है और वो एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगते हैं, जिस पर ईव को जलता है। वो एडम को तरफ खींचती है और इसे बताती है कि इसे अपनी जिंदगी में एक मीठी औरत की जरूरत है, कोई बदचलन नहीं। इसके बाद एडम डांस के लिए एक और लड़की से पूछता है और वो डांस फ्लोर पर छा जाते हैं, अपने जबरदस्त डांसिंग हुनर से सबको मुतासिर करते हैं। ईव अपनी जलन को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है और अपने साबिका दोस्त से बात करती है, जो एडम का मजाक उड़ाता है और इसे लड़ाई के लिए ललकारता है। ताहम एडम अपने बॉक्सिंग के असबाक का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से इस लड़के को भगा देता है। तमाम ड्रामे से बेजार होकर ईव क्लब छोड़ देती है और अकेले घर चली जाती है। जब टराय पहुंचता है तो वो इसे बताता है कि एडम इसकी हरीफ के साथ क्लब छोड़ गया है, जिस पर ईव को एहसास होता है कि वो एडम से मोहब्बत करती है और इसे तलाश करने के लिए बाहर भागती है। वो कार में बैठती है लेकिन रवाना होने से पहले किसी के शीशे पर दस्तक देने से घबरा जाती है और जमीन पर गिर जाती है। वो एडम होता है जो इसे अंदर ले जाता है और इसके खराश का ख्याल रखता है, ये वजाहत करते हुए कि इसे दूसरी लड़कियों को मुस्तरद करना पड़ा क्योंकि वो ईव के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता था। एडम ईव के सामने अपने जज्बात का एतराफ़ करता है और फाइनली वो चूमते हैं। अब जबकि वो एक साथ हैं, एडम फैसला करता है कि वो फाइनली ईव को अपने खानदान और अपने घर के बारे में सच बताए, इस बात का इजाफा करते हुए कि वो ईव से शादी करना चाहता है ताकि वो बनकर में इसके साथ रह सके। ताहम ईव समझती है कि वो दरहकीकत एक पागल आदमी है जो इसे छुपाने में माहिर रहा है और फौरी तौर पर इसे बाहर निकाल देती है। अगले दिन टराय एडम को शहर में घुमाता है और इसे ड्राइविंग सिखाता है। अचानक एडम पहले वाला एडल्ट वीडियो स्टोर देखता है और सड़क को फॉलो करते हुए आखिरकार अपने बनकर के ऊपर वाली इमारत को पा लेता है, जहां मिलकर ने लिफ्ट के अर्द गिर्द एक पूरा मजहब बना लिया है। पुरजोश होकर वो ईव को ये खबर देने के लिए वापस भागता है, लेकिन इसकी बजाय दो नफ्सियाती मुआलिज इसका इंतजार कर रहे होते हैं। पहले तो एडम ताउन का ड्रामा करता है, लेकिन जैसे ही इसे मौका मिलता है वो भाग जाता है। जब एक डॉक्टर इसका पीछा करता है, दूसरा पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन ईव इसे रोकती है और महसूस करती है कि इसने जो किया वो गलत था। इस वक्त एडम इसके करीब से भागता है और इसे कॉर्ड्स के साथ बिल अदा करने के लिए अपनी होटल की चाबी देता है। फिर वो अपनी किराए की ट्रक में बच निकलता है, गलती से डॉक्टर की कार को टकरा कर। बाद में ईव और टराय एडम के होटल के कमरे में पहुंचते हैं और ऐसी अशिया का एक ग्रुप पाते हैं जो 60 की दहाई में बनी थीं। इसके अलावा केल्विन के स्टॉक सर्टिफिकेट्स जो अब लाखों डॉलर के हैं। उन चीज़ों से उन्हें एहसास होता है कि एडम ने उन्हें सच बताया था। इस दौरान एडम फाइनली बनकर वापस आता है और 2 हफ्ते बाद अपने वालिदैन को गिले लगाता है। वो उनसे कहता है कि बाहर की दुनिया खूबसूरत है और सामान अंदर लाता है, जिसे मिलकर और इसके दोस्त लौट कर रहे होते हैं। ईव की तरफ वापस वो एडम को तलाश करने के लिए बेकरार है तो टराय इसे एडल्ट वीडियो स्टोर ले जाता है और वो फर्श पर थपथपाने लगते हैं, ये सोच कर के शायद वहां बनकर मिल जाए। जाहिर है उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में बाहर निकलते हुए वो एडम को पड़ोसी इमारत में दाखिल होते देखते हैं। ईव फौरी तौर पर इसे चूमने और गिले लगाने के लिए भागती है और एडम इसे अपने वालिदैन से मिलने के लिए मदऊ करता है। केल्विन और हेलन ईव को बहुत पसंद करते हैं और वो मिलकर रात का खाना खाते हैं। केल्विन एडम को परिंदों और मक्खियों, जिनसी तालीम के बारे में बात भी देता है। ताहम नई जिंदगी के लिए कोई मंसूबा बनाने से पहले एडम अपने वालिदैन से 2 महीने इंतजार करने को कहता है। अगले हफ्तों के दौरान एडम और ईव केल्विन के स्टॉक्स फरोख्त करते हैं और देहात में एक नया घर बनाते हैं जो एडम के पिछले घर जैसा ही होता है। मिलकर भी सफाई करने और फाइनली शराब नोशी तर्क करने के बाद मदद करता है। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद एडम अपने वालिदैन को घर ले जाता है, ये जाहिर करते हुए कि इस तरह वो नई दुनिया के आदि आहिस्ता आहिस्ता हो सकते हैं। बाद में जब हेलन और ईव रात का खाना तैयार कर रही होती हैं, एडम फाइनली केल्विन को बताता है कि कोई एटमी जंग नहीं हुई थी, कि बम दरहकीकत एक हवाई जहाज था जो उनके घर से टकरा गया था और ये कि सोवियत यूनियन का खात्मा हो गया था। केल्विन इस पर यकीन करने से इनकार करता है और महज एहतियात के तौर पर एक नया बनकर बनाने की मंसूबा बंदी करना शुरू कर देता है।